Rahim. Dear students, welcome in a class. I hope you all are fine. As in today's class, we will discuss a new unit, that is unit number 5, matter and changes in its state. So let's start today's class. As in our daily life, we see thousands of things around us. These things have different size, different shapes, different color, and also different masses. So how these objects are formed? So these objects are formed by matter. Basically, these all the things around us is made up of matter. So what is matter and how we can define matter? So matter is anything. How we can define matter? Matter is anything that occupies space and has mass is called matter. So anything in the यूनिवर्स में हर वो चीज़ जो कुछ भी जगह रखे एंड कुछ उसका वजन हो, सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर नोन एज मैटर. सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स, or we can say that everything in the universe, anything that occupies space and has mass is called matter. So we can say that almost everything in the universe is made up of matter, because almost everything in the universe is occupies space and has some mass. For example, the book is a matter, the water we drink is a matter, the food we eat is a matter, the air we breathe is a matter, the board is matter, and we can say that almost everything is made up of matter. Being ourselves, we are also matter. So matter is anything that occupies space and has some mass is called matter. Students, is matter exist in only one state? No. Obviously, your answer is not, because matter is exist in more than one state. So there are total different states, that is 3 states of matter. The first one is solid state, liquid state, and gaseous state. So now, what are the states of matter? Are how many states matter can exist? So there, instead of matter, there are 3 states of matter, that is solid, liquid, and gas. So we will discuss one by one each state. The first one state of matter is solid state. So solid state is the state of matter that has a fixed shape and fixed volume. अब आपके पास लेट्स सपोज के सामने आप अपने माइंड में रखें आइस क्यूब को, ठीक है, और आइस क्यूब को आप ऑब्जर्व करते जाएं. जो जो प्रॉपर्टी, जो जो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे उसको आपने रिलेट करना है आइस क्यूब के साथ, ठीक है. सो इट हैज़ अ फिक्स शेप. सो आइस क्यूब को आप देख लें. लेट्स सपोज कि अगर आप आइस क्यूब को लें, किसी प्लेट में इसको रखें. सो जैसा कि अगर हम आइस क्यूब को उठाएं और इसको किसी प्लेट में रखें, या फिर हम इसको किसी कप के अंदर रखते हैं, या फिर हम किसी ग्लास के अंदर या किसी भी किस्म के कंटेनर के अंदर रखें, तो इसकी कोई शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि जिस तरह से ये शेप है एज इट इज़ ये आइस क्यूब ही रहेगा, चाहे आप किसी भी कंटेनर में इसको रखें. सो वी कैन से दैट इट हैज़ अ फिक्स शेप एंड इट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम. लेट्स सपोज कि आपने प्लेट में रखा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इसका वेट 5 ग्राम है. तो ऐसा नहीं है कि जब हम इसको किसी कप में रखेंगे तो तब इसका वेट जो है वो 10 kg या 15 kg या 4 kg या 3 kg हो जाएगा, बल्कि इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम. कि यहाँ पे 5 kg था, तो यहाँ कप के अंदर या किसी और कंटेनर के अंदर आके भी इसका वेट कितना होगा? 5 ग्राम वेट ही होगा. इज इट क्लियर? सो as solids have fixed volume and molecule of solid are closely packed with each other. So सारे के सारे मालिक्यूल सॉलिड में क्या होते हैं? ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं. इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस या इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं. सो दैट्स वाई अगर ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसीलिए दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कि एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से कहीं दूर नहीं जा सकता. सो व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स आर द स्टेट ऑफ मैटर दैट इट हैज़ अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम एंड मालिक्यूल ऑफ सॉलिड आर closely packed with each other, and because of the molecules are closely packed with each other, they cannot move away from each other. So what are the examples of solid? So solid is, for example, wood, glass, book, board. These all are the examples of solid which have fixed shape and fixed volume. The next one state of matter is liquid state. So what are liquid?
सो स्टूडेंट्स, आप अपने सामने ऑब्जर्व करें अ ग्लास ऑफ वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपने उसके साथ रिलेट करना है, ठीक है। सो इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम कि आपके पास सॉलिड जो होते हैं, लिक्विड जो है, लिक्विड है वह फिक्स्ड वॉल्यूम कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें हमारे पास क्या है 5 ml वाटर है, ठीक है। अब इस 5 ml वाटर को अगर मैं किसी कप के अंदर रख देती हूँ तो देन जो है यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम कितना रहेगा 5 ml ही रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ कप में आके इसका वॉल्यूम जो है 6 ml या 10 ml या 3 ml हो जाएगा, बल्कि इट्स वॉल्यूम शुड रिमेन constant. So that's why it has a fixed volume but it does not have fixed shape कि लिक्विड के वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप जो है इसकी फिक्स नहीं होती। लेट्स सपोज कि पहले हमने ग्लास में पानी रखा था तो इसकी शेप कैसी होगी थी, जस्ट लाइक ग्लास, जस्ट लाइक कंटेनर। और जब हमने इसको कप में रखा तो जस्ट लाइक द कप, इसकी शेप जो है वो चेंज करती है, वेरी करती है कंटेनर टू कंटेनर की, यानी कि जिसमें इसको कैप्ट किया जाए उसकी तरह की इसकी शेप हो जाती है। सो इट अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ट। सो ये क्या करेगा, जब आप जिस भी लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेगा। सो दैट्स वाई इट कैन फ्लो। सो लिक्विड मालिक्यूल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। मालिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सॉलिड के मालिक्यूल्स दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, सो दे आर लेस क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, यानी कि इनके दरमियान मालिक्यूल्स के दरमियान छोटी छोटी या फिर खाली एम्प्टी स्पेसेस हमारे पास मौजूद होती हैं। लेकिन एज इट इज़ नहीं कि बहुत फार अवे हों या बहुत लूजली पैक्ड हों, बल्कि ये लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्मॉलर डिस्टेंस इनके मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होते हैं। सो व्हाट आर लिक्विड? Liquid is the state of matter which have fixed volume but they does not have fixed shape. They will adopt the shape of the container in which it is kept. And liquid can also flow. And why liquids can flow? Because the molecule of liquid are less closely packed with each other. So what are the examples of liquid? So there are different examples of liquid. For example, water is an example of liquid, milk, juice, petrol, etc. These are the examples of liquid. The next one state of matter is gas. So what are the gases? It has neither fixed shape nor a fixed volume. कि गैसेस जो स्टेट ऑफ मैटर है यहाँ पे ना तो कोई फिक्स शेप होती है बल्कि ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट कम्प्लीटली फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल of the space of the container. So it completely fills all the space of the container. ये जितने भी गैसेस हमारे पास होती है, लेट्स सपोज के कंसिडर करें कि यहाँ पे आपके पास ये आपका एक रूम है। अब रूम की इस कॉर्नर में जैसे गैस लीकेज हो रही है, ठीक है। सो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपको पूरे रूम से जो है स्मेल आना शुरू हो जाएगी गैस की। क्यों? बिकॉज कि गैस मालिक्यूल जो है इनकी कोई फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि ये थोड़ी सी भी अगर गैस के मालिक्यूल हो तो ये पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड कर जाते हैं। सो दैट्स वाई सॉलिड गैस हैज़ नीदर फिक्स शेप नॉर अ fixed volume, so it completely fills all the space of the container. So how molecules of gas are packed? So molecule of gas are loosely packed. There are large intermolecular distance between the molecules of गैस। सो गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस या खाली जगह होती हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द गैस? गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर and gas has neither fixed shape nor fixed volume. So what are the examples of gas? So example of gas is air, oxygen and hydrogen. So this is all about today's lecture. So students, what we have to discuss in today's lecture? So first of all, in today's lecture, we have discussed about the matter. So what is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. So what are the states of matter? So there are 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. So solid have a fixed volume and fixed shape, and liquid have fixed volume but does not have fixed shape, and gas has neither fixed shape nor fixed volume. Now students, move towards the exercise question. So the first one question is define matter. So first of all you have to put the heading of answer and then put the heading of matter. So how we can define matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. So define matter. Then you have to put the heading of answer and then matter. So anything that occupies space and has mass is called matter. And the second one question is write 5 examples of each state of matter.
So first of all, you have to put the heading of solid, liquid and gas, and then you have to write 5 examples for each state of matter. So in case of solid, the first one is ice, wood, book, glass and iron. In case of liquid, water, oil, juice, petrol, milk. In case of gas, steam, oxygen, hydrogen, air and carbon dioxide. So these are our five examples for solid, liquid and gas. So this is all about today's lecture. So students, you have to write these two questions with proper paper presentation, writing formation, date and margin lines. And first of all, you have to learn these questions, and then you have to write these questions on assignment pages and submit on your school at 26th of जनवरी. इन केस स्टूडेंट्स अगर आपको उससे पहले बुलाया जाता है 25th ऑफ जनवरी को आपको बुलाया जाता है, तो देन आप अपने साथ 25th जनवरी को लेके आएंगे. अदरवाइज़ आप ये असाइनमेंट 26th ऑफ जनवरी को सबमिट करेंगे. एंड अनदर वन थिंग इज़ कि आपने साथ साथ अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है, बिकॉज कि आपके फेब में एनुअल एग्ज़ाम होंगे, रिटन एनुअल एग्ज़ाम, और उसके लिए आपने अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखना है. एंड और साथ साथ आपने ये होमवर्क भी करना है, बिकॉज कि इस होमवर्क के 50% मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम में ऐड किए जाएंगे. इज़ इट क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, द अनदर वन अनाउंसमेंट फॉर यू इज़ कि आपके स्कूल में जैसा कि इंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो 24th जनवरी को एंट्री टेस्ट हो रहा है मॉन्टेसरी सेक्शन का, एंड 31st जनवरी को एंट्री टेस्ट हो रहा है ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक. ठीक है. सो ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक की एंट्री टेस्ट जो है वो 31st ऑफ जनवरी को कंडक्ट किए जा रहे हैं. सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप उनको गाइडलाइन दे सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है कि ग्रेड 6 से ग्रेड 9 तक का स्कॉलरशिप टेस्ट भी 31st जनवरी को हो रहा है. सो आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट करना है. बहुत अच्छे से आप ग्रेड 6 के लिए पार्टिसिपेट करें, प्लस सब कुछ है आपने इन्फॉर्म करना है. सो दोबारा से ये सुन लें डेट्स कि आपके पास 24th ऑफ जनवरी को मॉन्टेसरी सेक्शन का टेस्ट हो रहा है, 31st जनवरी को ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक की एंट्री टेस्ट हो रहा है, प्लस ग्रेड 6 से ग्रेड 9 तक का स्कॉलरशिप टेस्ट भी 31st जनवरी को हो रहा है. इज़ इट क्लियर?